Good morning. Good morning, everyone. हाँ, GIC बुकलेट डिस्कशन सॉल्व किया बुकलेट? ठीक है, लेट मी ओपन इट। एक मिनट रुकना। कर लेते हैं, आज बहुत लोगों ने किया है सॉल्व। आई थिंक मेटालिक बॉन्ड रह गया था ना डिस्कस करना। नोट्स में हमने मेटालिक बॉन्ड कवर किया, बट वो पार्ट डिस्कस करना रह गया था ना। तो मेटालिक बॉन्ड पहले डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर GIC का बुकलेट डिस्कस कर लेंगे फटाफट। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड में वी स्टडी टू डिफरेंट मॉडल्स ऑफ मेटालिक बॉन्ड। एक है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और एक है बैंड मॉडल। इन द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल we say that metals consist of a lattice of metal ions which are embedded in a sea of its valence electrons or a cluster of its valence electrons, and strength of metallic bond depends on number of valence electrons and the size of the metal ions. Smaller metal ion will result in stronger attraction, stronger metallic bond, and more number of valence electrons will also result in stronger metallic bond. Okay, for example, alkali metals are the softest metals. Why? Alkali metals have only one valence electron, so less number of electrons will result in a weaker metallic bond. Also, they are largest in size. Because of larger size, the attraction for electrons will be less, the metallic bond will be weaker. So alkali metals are the softest metals. They can be cut by a knife. Sodium, potassium, rubidium, cesium are very soft metals, whereas the transition metals such as iron, manganese, cobalt are much harder. Okay, because in the transition metals, more number of electrons take part in metallic bond. It is found that in addition to the outermost s electrons, transition metals may the unpaired d electrons also take part in metallic bond formation, resulting in stronger metallic bond in transition metals. ठीक है, clear है ये? Next model is the band model. It is somewhat similar to the molecular orbital theory. ठीक है, when we have an isolated atom, we have well defined energy levels 1s, 2s, 2p, 3s. When two sodium atoms come together, the 1s levels combine to form two different 1s levels. याद करो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था हमने, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनता है, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनता है। तो उसको मैंने दो अलग अलग लेवल से डिनोट किए। व्हेन टू सोडियम एटम्स कम टुगेदर, ठीक, ईच एनर्जी लेवल विल फर्दर स्प्लिट इनटू टू एनर्जी लेवल्स. Similarly, when we have n sodium atoms, each energy level will split into n different levels, forming bands of energy levels. We get 1s band, 2s band, 2p band, and 3s band. So metals में bonding is explained by the band model. Metals, a number of metal atoms come close together to form a metallic crystal. In the metallic crystal, okay, the energy levels in individual atoms combine to form bands of energy levels, forming 1s band, 2s band, 2p band, 3s band, and so on. ठीक है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक टर्म है वैलेंस बैंड और एक टर्म है कंडक्शन बैंड. The highest fully filled band is called the valence band. The highest energy fully filled band is called the valence band, and the next high energy band is called conduction band. So conduction band is either partially filled or vacant. Okay, conduction band is either partially filled or vacant. Okay,
अगर कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है तो कंडक्शन बैंड में कुछ वेकेंट एनर्जी लेवल्स भी प्रेजेंट हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन आता है, ठीक है। whenever we have one or more electrons in the conduction band, it results in high conduction. तो मेटल्स के पास जनरली क्या होता है, मेटल्स के पास कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है, मेटल्स हैव सम इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड which results in their high electrical conductivity. इंसुलेटर्स की बात करेंगे, इंसुलेटर्स हैव अ वेकेंट कंडक्शन बैंड, और इंसुलेटर्स का कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप बहुत ज्यादा होता है। देखो नीचे मैंने इंसुलेटर्स एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड तो फुल्ली फिल्ड है, valence band is fully filled, conduction band is vacant, and there is a large gap between valence band and conduction band. तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इंसुलेटर्स आर वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओनली व्हेन some electrons are excited from valence band to conduction band, and that will require a large amount of energy because there is a large gap between valence band and conduction band. Only when some electrons are excited from the valence band to the conduction band, that we get some electrons in the conduction band that results in some conduction. So normally insulators are very poor conductors because it is very difficult for an electron from valence band to jump to conduction band. सेमीकंडक्टर्स में ये गैप बहुत कम होता है, सेमीकंडक्टर्स में ये गैप बहुत कम होता है, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाने से we can increase the number of electrons that go from valence band to conduction band, we can increase its conductivity. मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में या तो कंडक्शन बैंड खुद पार्शियली फिल्ड है, मतलब कंडक्शन बैंड में खुद कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स विद द वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में गैप ऑलमोस्ट जीरो हो गया, दे ओवरलैप, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, रिजल्टिंग इन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, रिजल्टिंग इन कंडक्शन। ठीक है, क्लियर है ये? तो दिस बैंड मॉडल इज helpful in understanding the conductivity of metals with respect to insulators and semiconductors. तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की स्टडी में ये बैंड मॉडल काफी हेल्पफुल है। तो फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स एक चैप्टर है, वहां पे विल आल्सो डिस्कस, वहां पे भी विल स्टडी अबाउट द बैंड मॉडल ऑफ दिस मेटल्स, बैंड मॉडल्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, क्लियर है ये? एक बार बुकलेट डिस्कस कर लेते हैं। I'll take only doubts of the booklet. असाइनमेंट 1 के डाउट्स बोलो पहले, बुकलेट में असाइनमेंट 1 डाउट्स बोलो।
कोई डाउट नहीं है HA1 में, असाइनमेंट 1 में कोई डाउट नहीं है, असाइनमेंट 2 के डाउट्स बोलो। डाउट्स इन असाइनमेंट 2? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1257, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई बिलीव पढ़ा होगा तुम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। फॉर हेलो कार्बीन्स द सिंगलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल। whenever we have a plus m group, सिंगलेट कार्बीन कुछ ऐसा होता है, there is a vacant p orbital, ठीक है। सिंगलेट कार्बीन is stabilized by plus m effect of the lone pair of halogens. The lone pair results in plus m effect. So there is electron delocalization, or we can say that back bond from the lone pair of halogen to the vacant p orbital, which stabilizes the singlet carbene. ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी डाउट है प्रशांत को, एक सेकंड। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ CF2 CCl2 CBr2 CI2, ठीक है। स्ट्रॉन्गर प्लस m, तो स्मॉलर halogens will form stronger back bond, they will have a stronger plus m, will result in greater stability. The order will be CF2 greater than CCl2 greater than CBr2 greater than CI2. क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 2? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, H3BO3 acts as a weak monobasic acid in aqueous solution, but on addition of cis glycol it behaves as a strong acid. We'll talk about this, ठीक है, इन दी P ब्लॉक में ये पार्ट पढ़ाऊंगा मैं, फिर भी मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये H3BO3 is a very weak acid, ठीक है। When added to water, it takes up OH minus from water, it forms BOH whole 4 minus and releases an H plus ions, ठीक है। So it is dissociates only partially, it is a weak acid. What happens when a cis diol is added? Cis glycol. Glycols are diols containing two consecutive OH. So whenever we have two consecutive OH in a compound, we call them as cis glycol. So this is an example of a cis glycol. Okay, the two OH groups must be on the same side. Okay, it reacts with BOH whole 4 minus and forms a very stable complex. It reacts with BOH whole 4 minus and forms a very stable complex. ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन होके इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स,
कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है। प्लस H2O। ठीक है, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी स्टेबल। The formation of this complex consumes BOH whole 4 minus. It drives the dissociation reaction in the forward direction. Thereby, it increases the acidic strength of H3BO3. समझा क्या ये? क्वेश्चन नंबर 5 समझा क्या? ठीक है, आई थिंक सॉल्यूशन भी मेंशन्ड है, इसका सॉल्यूशन भी गिवन है पीछे। नेक्स्ट विल डू क्वेश्चन नंबर 7। Do all diboranes contain banana bond? Yes, diboranes will definitely contain banana bond. They are electron deficient species. They will definitely contain banana bond. फिर क्वेश्चन नंबर 9, number of silicon oxygen silicon bonds in cyclic silicate Si6O18 12 minus। ठीक है, Si6O18 12 minus। ठीक है, ये सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर विल अगेन डू इन पी ब्लॉक, फिर भी मैं बता देता हूँ। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक सिलिकेट है ना, तो 6 सिलिकॉन एटम्स हैं। कैन थिंक ऑफ 6 silicon atoms along the 6 corners of an hexagon. ठीक है, और हर एक सिलिकॉन पे ऐसे 2 O माइनस आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Si6O18 12 माइनस। ठीक है, क्लियर है ये? How many silicon oxygen silicon bonds are there? There will be 6 silicon oxygen silicon bonds. क्वेश्चन नंबर 9 समझा? One, 2, 5, 7, 9, 11 and 14. Next doubt is 11 and next doubt is 14. 11th or 14th. The oxygen-oxygen bond length in H2O2 is more than oxygen-oxygen bond length in O2F2. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम बेंट्स रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट्स वी डिड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। H2O2 बहुत सारे अलग अलग थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। बोथ ऑक्सीजन एटम्स हैव लोन पेयर्स, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीजेस। Electron density on oxygen increases. More lone pair repulsion on the oxygen atoms. More lone pair repulsion on oxygen atoms, resulting in greater bond length. Whereas in F2O2, fluorine is more electronegative. F2O2 का structure देखेंगे तो fluorine is more electronegative. So fluorine will become electron rich. Oxygen becomes electron deficient. Electron density on the oxygen atoms decrease. The lone pair repulsions will decrease, bond length is shorter. The lone pair repulsion on the oxygen atoms will be lower in O2F2, therefore O2F2 bond length will be shorter. समझ रहा है ये? MOT से भी कर सकते हैं। H2O2 में हाइड्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज, तो O2 हैज नेगेटिव चार्ज। O2 पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे O2 पे डेल्टा प्लस। अगर O2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखते हैं हम? O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 लिखते हैं। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखते हैं? 2.5। तो O2 प्लस का बॉन्ड कम हो जाएगा। और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखते हैं? O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर हम लिखते हैं 1.5। तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, तो O2 माइनस विल बी लॉन्गर, O2 प्लस विल बी शॉर्टर। तो O2 पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज,
अगर O2 पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 11? फिर और कौन सा पूछा? क्वेश्चन नंबर 14। सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इन SOF2 SOCl2। ये थोड़ा डिफरेंट है। ये हम बेंड्स रूल से एक्सप्लेन करेंगे। So due to larger size of bromine, we have θ3 more than θ2 more than θ1। ठीक है, as bond angles will increase, ठीक है, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल्स बढ़ेगा परसेंटेज एस कैरेक्टर इन द कार्बन हैलोजन बॉन्ड इंक्रीजेस। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इन कार्बन हैलोजन बॉन्ड CX बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। सपोज इसको मैं 1 लिखता हूँ, इसको 2 लिखता हूँ, इसको 3 लिखता हूँ। जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा आएगा। तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर विल बी 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। तो परसेंटेज पी कैरेक्टर इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल बी रिवर्स ऑफ दिस। सॉरी, जिधर एस कैरेक्टर ज्यादा है उधर कार्बन ब्रोमीन पे एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो सल्फर ऑक्सीजन पे पी कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। तो 3 में पी कैरेक्टर ज्यादा आएगा। और वी कैन से दैट ऐसे लिख लो, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल बी 3 लेस देन 2 लेस देन 1। अगर हेलोजन बॉन्ड्स की तरफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बॉन्ड की तरफ, ठीक है, एस कैरेक्टर कम होगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज 3 to 1। मोर एस कैरेक्टर मीन्स शॉर्टर ऑर्बिटल्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसमें आएगा जिसमें एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में आएगा? एस कैरेक्टर इन दी कार्बन, सॉरी सल्फर ऑक्सीजन, कार्बन है यहाँ पे, सल्फर है, तो लेट अस रिप्लेस दिस कार्बन बाय सल्फर। तो हमें क्या कंपेयर करना है? सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स पे एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में आ रहा है? 1 में। तो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन 1। एंड सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड पे एस कैरेक्टर मिनिमम किस में आ रहा है? 3 में। तो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड विल बी वीकेस्ट इन 3। तो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा मोर एस कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। SOF2 मोर देन SOCl2 मोर देन SOBr2। समझा ये? फोर्टींथ वाला समझा? ठीक है, अभी नेक्स्ट बताओ, होम असाइनमेंट 3 के डाउट्स बोलो। 1 का 2 6 एंड 8, एक सेकेंड रुको। 1 का 2, 1 का 6, 1 का 8। He2 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। बॉन्ड ऑर्डर 0 कैन नॉट एग्जिस्ट। He2 plus and He2 minus have bond order 0.5, तो they can exist. Positive bond orders can exist। ठीक है, तो 1 का 2 तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर 1 का 6, 1 का 6 क्या है? इन N2 1 बॉन्ड इज सिग्मा एंड अदर 2 बॉन्ड्स आर पाई। इसमें क्या प्रॉब्लम है? N2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आ जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2।
तो इन 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग का स्टेबिलाईजेशन इज कैंसिल्ड बाय एंटी बॉन्डिंग का डिस्टेबिलाईजेशन। देन वी हैव पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें सिग्मा टू पी जेड में दो इलेक्ट्रॉन्स। तो दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग में, तो एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, वन सिग्मा बॉन्ड, और चार इलेक्ट्रॉन्स पाई में, तो वी हैव टू पाई बॉन्ड्स। ठीक है, ये तो बहुत आसान था ये। फिर उसके बाद एट्थ वन, 2, 6 एंड 8। इफ वी ऐड वन इलेक्ट्रॉन टू F2 बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। गलत है ये। F2 हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर इज 1। F2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0.5, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। इफ यू ऐड वन इलेक्ट्रॉन टू F2 बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, रॉन्ग है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 1? नाउ क्वेश्चन नंबर 7। और 7 से पहले और कोई डाउट है? Structure of P4O10. P4O10 is similar to P4O6. 4 phosphorus बना लो. They are interconnected by oxygen atoms. This is P4O6, and then we have double bond O, double bond O. This is P4O10. It has two types of phosphorus oxygen bonds because एक डबल बॉन्ड है और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 7? Any other doubt in assignment 3? Question number 4. Draw a diagram of molecular orbital versus distance between क्या डाउट है इसमें? When atoms come close together, molecular orbitals are formed. ये atomic orbitals, ये molecular orbitals, ये bonding, ऊपर एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। व्हेन डिस्टेंस इज हाई, ठीक है, वी हैव प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। व्हेन डिस्टेंस डिक्रीजेस, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल कंबाइन टू फॉर्म वन बॉन्डिंग एंड वन एंटी बॉन्डिंग। रिवाइज एमओटी थॉरोली। नेक्स्ट, और कोई डाउट है इसमें? सॉल्यूशन तो सारा दिया ही हुआ है, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। ये एनर्जी देखो, एनर्जी ऑर्डर, जैसे जब डिस्टेंस हाई है तो एक्चुअली वी हैव प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दोनों की एनर्जी हाई है। ठीक है, व्हेन डिस्टेंस डिक्रीजेस द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म व्हिच इज ऑफ लोअर एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज लाएंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि व्हेन एटम्स आर वेरी क्लोज देयर विल बी न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन, then bonding molecular orbitals also energy increases. So there is a optimum distance where energy of the bonding molecular orbital is minimum. ठीक है, और इस ऑप्टिमम डिस्टेंस पे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि ऊपर एंटी बॉन्डिंग और नीचे बॉन्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्डेड स्टेट आता है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स होता है इसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंस इन एनर्जीज है इसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं।
ठीक है, तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रही है, एनर्जी इज मिनिमम, दैट स्टेट इज कॉल्ड द बॉन्डेड स्टेट. So this is normally what we draw. तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एज एनर्जी डिक्रीजेज. ठीक है, एंटी बॉन्डिंग एमओ का एनर्जी बढ़ेगा और बॉन्डिंग एमओ का एनर्जी डिक्रीज होगा. ठीक है, एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉन्डिंग एमओ विल बी मिनिमम, और उस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. उस स्टेट पे मॉलिक्यूल्स एटम्स टेंड टू रिमेन इन दैट वेरी स्टेट. ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4, हर्ष. ठीक है, एनी अदर डाउट? हो गया अभी. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटिन्यू करते हैं. Let us continue with coordination compounds. एक सेकेंड रुकना. कहाँ तक किया था लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बताओ. आई थिंक ये पॉट कर लिया था क्या हमने? फ्लेक्सीडेंटेड टाइप्स ऑफ लिगेंड्स कर लिया था क्या? हाउ मच वी डिड?
तो नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम कर लिया था। अच्छा, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम वी हैव टू स्टार्ट। ओके ओके ओके, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम वी हैव टू स्टार्ट। ठीक है, नेमिंग ऑफ लिगैंड्स तक कर लिया था हमने। ठीक है, यही ना। फाइन। वन सेकेंड। तो नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल एटम का नाम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो हम एक्चुअल नेम यूज करेंगे मेटल का। इफ द सेंट्रल एटम इज पार्ट ऑफ एन आयनिक कॉम्प्लेक्स तो हम उसके नाम के आगे ATE ऐड करते हैं। सफिक्स AT इज एडेड इन द एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में हम एक्चुअल नेम यूज करेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सफिक्स 8 ऐड यूज करेंगे। जैसे टाइटेनियम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में टाइटेनेट, वेनेडियम वेनेडेट, मैंगनीज मैंगनेट, क्रोमियम क्रोमेट। ठीक है, फॉर फ्यू मेटल्स, फॉर सम मेटल्स, their Latin names, their symbolic names are used only in the anionic complex, not in the cationic complex, but in the anionic complex. जैसे iron के लिए we don't write as ironate, we write it as ferrate. tin के लिए we write stannate, lead के लिए we write plumbate, silver के लिए we write argentate, gold के लिए we write aurate and so on. ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखो, नाउ विल स्टडी द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एज अ होल। नेमिंग ऑफ लिगैंड पढ़ लिया हमने, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम पढ़ लिया। नाउ विल स्टडी द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को जब भी लिखेंगे तो विल राइट ऑल द लिगैंड्स फर्स्ट इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर लिगैंड 2 या 3 बार या 4 बार रिपीट हो रहा है तो हम प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगैंड है, कोई सब्स्टिट्यूटेड लिगैंड है, तो व्हेन अ कॉम्प्लेक्स लिगैंड इज रिपीटेड हम डाई ट्राई की जगह बिस्ट्रिस यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए बिस्ट्रिस, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए डाई ट्राई। ठीक है,
Often after the name of the central atom we specify the oxidation number of the central atom. ठीक है, तो सेंट्रल आटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, और रोमन न्यूमरल्स में अगर +1 है तो हम रोमन न्यूमरल 1 यूज करेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंगली रोमन न्यूमरल 2, 3 एटसेट्रा विल बी यूज्ड टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल आटम इन ब्रैकेट्स. अगर कॉम्प्लेक्स आयोनिक फॉर्म में गिवन है विल ऐड द वर्ड आयन आफ्टर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ठीक है, एंड पूरे कंपाउंड का अगर आयुपैक नेम लिखना है तो पूरे कंपाउंड में पहले हम कैटायन लिखेंगे फिर एनायन लिखेंगे. इन दी ओवरऑल कंपाउंड कैटायन इज ऑलवेज रिटन बिफोर दी एनायन. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक कैटायन या एक एनायन कितनी बार रिपीट हो रहा है फॉर्मूला में ये लिखने की जरूरत नहीं है. नंबर ऑफ टाइम्स अ कैटायन और एनायन इज रिपीटेड वी नीड नॉट राइट इन दी फॉर्मूला. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट्स? इन पॉइंट्स में कोई डाउट है क्या? ये एग्जांपल्स देखो. फॉर्मूला SCONH3 होल 6Cl3. यहाँ पे इट्स अ कंपाउंड. इसमें फर्स्ट द कैटायन इज अ कॉम्प्लेक्स आयन एंड एनायन इज अ सिंपल आयन. तो 3 क्लोरीन है तो हमने ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा है. ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स अ कैटायन और एनायन इज रिपीटेड इज नॉट स्पेसिफाइड. ठीक, कैसे लिखेंगे? पहले कैटायन का नाम लिखना है फिर एनायन का नाम लिखना है. कैटायन इज अ कॉम्प्लेक्स आयन, और कॉम्प्लेक्सेस में पहले लिगैंड्स लिखते हैं फिर सेंट्रल आटम लिखते हैं. तो लिगैंड क्या है? अमोनिया इज द लिगैंड. अमोनिया एज अ लिगैंड इज रिटन एज अमाइन. we'll write its name as hexaamine. 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है तो हेक्साअमाइन. कोबाल्ट 3, क्योंकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा. ऑक्सीडेशन नंबर हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, कोबाल्ट का चार्ज x ले लो, अमोनिया का चार्ज 0 होता है. तो x +6 × 0 +3 × -1 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू +3, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा. तो विल राइट इट्स नेम एज हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड. एक और एग्जांपल देखो. CONH3 होल 4Cl2Cl. यहाँ पे देखो बाहर एक ही क्लोरीन है, तो बाहर एक क्लोरीन हो, बाहर 2 क्लोरीन हो, बाहर 3 क्लोरीन हो, विल नॉट राइट इट एज डाइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड. ओनली व्हेन इफ इट इज प्रेजेंट एज अ लिगैंड देन विल स्पेसिफाई दैट एज अ लिगैंड कितने क्लोरीन है. तो डाइक्लोरीन तो डाइक्लोरिडो, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरिडो, 1 क्लोरीन आएगा तो सिंपली क्लोरिडो लिखेंगे, और अंदर 4 क्लोरीन आएगा तो टेट्राक्लोरिडो, एंड सो ऑन. The next becomes IUPAC name of the next compound becomes tetraamine dichlorido. We have to write the ligands in alphabetical order. तो पहले अमाइन आएगा फिर क्लोरिडो आएगा. अमाइन का A क्लोरिडो के C से पहले आएगा. तो टेट्राअमाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड. If we have a didentate ligand or a complex ligand जैसे EN or a substituted ligand, then when a complex ligand is repeated, when a didentate ligand is repeated, we do not use ditri, we rather use bis tris. तो ट्रिस इथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड. आ रहा है समझ में ये? यहाँ पे देखो 2 EN है 2 अमोनिया है. फिर अमोनिया पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. अमाइन पहले आएगा फिर इथिलीन डाइअमाइन आएगा. तो डाइअमाइन बिस इथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड. ठीक है, ये ऊपर वाले जितने भी एग्जांपल्स किए हमने 1 to 4, इन सब में सेंट्रल एटम इज पार्ट ऑफ अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमने मेटल का एक्चुअल नेम यूज किया एज द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम. हमने डायरेक्ट कोबाल्ट यूज किया है. एक सेकेंड रुकना. Next we'll do central atom if it is part of an ionic complex. If central atom is part of an ionic complex, ठीक है, we'll add the suffix ATE. तो यहाँ पे देखो K3COOX होल थ्राइस. पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो. कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा. We write the IUPAC name as potassium. ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है, सिंपली पोटेशियम लिखेंगे. नंबर ऑफ टाइम्स a cation or anion is repeated need not be written. ठीक है, एक सेकेंड.
द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैटायन और एनायन इज रिपीटेड नीड नॉट बी रिटन। तो इसका लिखेंगे ट्राई ऑक्सलेटो और ट्रिस ऑक्सलेटो, दोनों ही एक्सेप्टेड है। ऑक्सलेट इज अ डाइडेंटेट, डाइडेंटेट के लिए हम बिस्ट्रिस यूज करते हैं, बट ऑक्सलेट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूटेड लिगैंड, इट्स अ सिंपल लिगैंड, तो हम ट्राई भी यूज कर सकते हैं। तो ऑक्सलेटो के साथ ट्राई और ट्रिस दोनों ही एक्सेप्टेड है, वी कैन राइट इट एज ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3 और ट्रिस ऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3। ठीक है, आ रहा है समझ में ये? Similarly, PTNH3 whole 42 plus is tetraamine platinum 2 ion. ठीक है, यहाँ पे प्लेटिनम इज पार्ट ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। नीचे वाला एग्जांपल देखो, प्लेटिनम इज अ पार्ट ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो प्लेटिनेट लिखेंगे, प्लेटिनम नहीं लिखेंगे। तो ऊपर प्लेटिनम लिखा, नीचे प्लेटिनेट लिखा। टेट्राक्लोरिडो को हम टेट्राक्लोरो भी लिख सकते हैं। एम्बिडेंटेट लिगैंड्स के लिए डोनर एटम मस्ट बी स्पेसिफाइड आफ्टर द नेम ऑफ द लिगैंड विथ अ हाइफन। ठीक है, तो CN को हम लिखेंगे साइनिडो C, NC को लिखेंगे हम साइनिडो N। Earlier they were also written as cyno and isocyano. Earlier they were also written as cyno and isocyano. So cyno and isocyano is an old convention. Modern convention is we'll write the name and specify the donor atom after hyphen, cyanido C or cyanido N. ठीक है, जैसे K4FeCN6 का यूपैक नेम लिखेंगे, it will become potassium hexacyanido C ferrate 2, or we can also write it as hexacyanoferrate 2. Cyano is still accepted, but more appropriate will be cyanido C. Similarly, NO2 minus can be written as nitrito N or nitrito O. SCN can be written as thiocyanito S or thiocyanito N. OCN can be written as cyanato O or cyanato N. जैसे इसमें मोनोथायो ऑक्सलेटो का देखो, इट इज एन एम्बिडेंटेट बट डाइडेंटेट लिगैंड। इसमें दो डोनर एटम है, दोनों डोनर एटम स्पेसिफाई करेंगे। इफ बोथ डोनर एटम्स आर ऑक्सीजन विल राइट O कॉमा O, इफ वन इज ऑक्सीजन वन इज सल्फर विल राइट O कॉमा S। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, एक मिनट रुकना। ये तो मैंने क्लास में नोट्स में कराए, कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं, एक मिनट रुकना। इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स अभी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 13, 15, नाइनटीन, ट्राई करो।
देखो वो सारे बुकलेट के क्वेश्चन से आंसर्स तो सारे गिवन है, तो देयर इज नो पॉइंट कॉपी पेस्टिंग। ठीक है, समझ के खुद से करना है। NCSS थायोसाइनेटो एन, NCSS थायोसाइनेट एन, इस एन से लिखा है बॉन्डेड तो थायोसाइनेटो एन लिखेंगे, और इसको पेंटामाइन लिखेंगे, पेंटामाइन कोबाल्ट थायोसाइनेटो एन। ठीक है, क्लोराइड। कोई डाउट है इसमें से किसी भी ऑप्शन में? 15th में डाउट है? हाँ ठीक है, 15th करते हैं। फिफ्थ वन ऑल्सो, ठीक है, फिफ्थ और 15th में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले फिफ्थ वाला कर लेता हूँ। के AuCN2-, ठीक है। अभी इसमें पोटेशियम का चार्ज +1, साइनाइड का चार्ज -1, तो गोल्ड का चार्ज कैलकुलेट करेंगे, टोटल चार्ज 0, 1 + x + 2 × -1 = 0, तो गोल्ड का चार्ज +1 आ जाएगा। ठीक है, अभी गोल्ड इज पार्ट ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो ऑरेट लिखेंगे। तो पहले कैटायन लिखना है पोटेशियम, फिर इसके बाद एनायन लिखेंगे। एनायन में, एनायन इज अ कॉम्प्लेक्स आयन, तो पहले लिगेंड्स लिखेंगे, तो डाइसाइनो लिखेंगे या डाइसाइनिडो सी लिखेंगे, और गोल्ड के लिए विल राइट इट एज ऑरेट, ऑरेट 1। समझा? क्वेश्चन नंबर 5 समझा श्रुति? ना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें एमोनिया इज अ न्यूट्रल ग्रुप, तो एमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है। कोबाल्ट पे चार्ज x ले लो, ठीक है। ये ONO इज नाइट्राइट, NO2-, इस पे चार्ज होता है -1, तो टोटल चार्ज लिखेंगे x + 6 × 0 + x + 6 × -1 = 0, तो 2x = 6 आ जाएगा, तो x = 3 आ गया, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया। नाउ पहले कैटायन लिखेंगे, कैटायन में क्या है, 6 अमाइन ग्रुप्स है, तो विल राइट इट एज हेक्सा अमाइन, ये डबल M, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3। फिर इसके बाद एनायन लिखेंगे, एनायन इज नाइट्रिटो, एनायन में लिगेंड क्या है, नाइट्रिटो है, नाइट्रिटो O, तो विल राइट इट एज हेक्सा नाइट्रिटो O, and then cobaltate 3 in the anionic complex. The name of the central atom is suffixed by ATE, ठीक है। हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, हेक्सा नाइट्रिटो कोबाल्टेट 3। आया समझ में? क्लियर है क्वेश्चन नंबर 15? श्रव्या, इज इट क्लियर? ठीक है, वापस अब नोट्स के एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। और कोई डाउट नहीं है ना इसमें? ठीक है, बाकी खुद से घर पे ट्राई करना, we'll discuss the doubts later on. तो some more examples of IUPAC names of complexes, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स डिस्कस किए हैं।
These common names are also important. These are compounds which find applications in salt analysis or other reactions. ठीक है, इसमें एक important compound है sodium nitroprusside. Sodium nitroprusside formula is Na2FeCN whole 5NO, which consists of sodium ions, simple ions, and a complex ion, which is called as the nitroprusside ion. It is an important laboratory reagent used in the detection of sulfide and sulfite ions, S2 minus and SO32 minus ions. ठीक है, इसका आयुपैक नेम लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा. तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर विल डिपेंड वेदर NO इज प्रेजेंट एज NO प्लस और NO0. ठीक है, तो theoretically two names are possible. Two names are possible. One name with NO as NO plus. तो NO plus मतलब नाइट्रोसोनियम आएगा, तो आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगा. Another name will be with charge on NO as 0, फिर आयरन पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा. Theoretically two names are possible. सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट 2 और पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 3. नाइट्रोसिल के साथ फेरेट 3 आएगा और नाइट्रोसोनियम के साथ फेरेट 2 आएगा. ठीक है, on experimental study it has been found that it consists of iron in +2 oxidation state. It is actually nitrosonium ferrate 2. ठीक है, तो actually the two compounds, the two names are actually two different compounds. ये जो दो names लिखाए हैं मैंने, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, these actually represent two different compounds. इसको मैं A और B से represent कर रहा हूँ. These two compounds are isomers of each other and they are called as electronic isomers. They are different in the arrangement of electrons. Sodium nitroprusside is the common name of the first compound. It is the first compound, the compound A, that is used in the test of S2 minus and SO32 minus ions. ठीक है, एक और हिंट है, ध्यान रखना कि NO जनरली जितने भी हम कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे उसमें मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस हैव NO इन NO प्लस. तो अगर NO हमेशा NO प्लस की तरह ट्रीट करेंगे, अकॉर्डिंगली आयुपैक नेम लिखोगे तो कभी आंसर रॉन्ग नहीं आएगा. ठीक है, तो NO को हमेशा हम NO प्लस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज जितने भी कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं उन सारे कंपाउंड्स में NO प्लस की तरह ही प्रेजेंट होता है. ठीक है, बुकलेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया हुआ इन्होंने. बुकलेट में correct option has been given as nitrosyl ferrate 2, but nitrosyl ferrate 2 is not correct. It should have been nitrosonium ferrate 2 because NO is present as NO plus. और NO plus को nitrosyl नहीं लिखते, NO plus को हम nitrosonium लिखते हैं. ठीक है, क्लियर है? Another important complex is the brown ring complex, which is formed in the brown ring test of nitrite and nitrate ions. It's a laboratory test. Salt analysis में ये टेस्ट भी पढ़ेंगे हम. नाइट्राइट और नाइट्रेट आयंस के टेस्ट में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसका कलर ब्राउन आता है. ठीक है, इसमें भी लिगैंड NO एग्जिस्ट एज NO प्लस, और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा. इट्स अ वेरी यूनिक केस. Very rarely we have any compound of iron in +1 oxidation state. This is a compound in which iron exists in +1 oxidation state. IUPAC name will be पेंटा एक्वा. 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो पेंटा एक्वा. एक NO प्लस है तो नाइट्रोसोनियम, तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम iron 1 sulfate. Will not use ferrate because iron is a part of cationic complex, so we'll simply use iron 1 sulfate. ठीक है, this is a unique compound of iron in which iron exists in +1 oxidation state. Next we have K2HgI4. K2HgI4 is a well-known chemical reagent known as Nessler's reagent. Nessler's reagent is used in the detection of ammonium ions or ammonia. It generally gives a brown colored precipitate in presence of NH4 plus or NH3. ठीक है, एक सेकेंड.
So its IUPAC name will be, potassium is the simple ion. It has 4 iodide ions. We'll write it as tetraiodido. And then mercury in the anionic complex can be written as mercurate or hydragyrate. Both are accepted. Mercury के लिए उसका symbolic name as well as, ठीक है, उसका actual name दोनों ही accepted है. Mercurate, we'll add the suffix ate. Mercurate is also accepted. Hydragyrum से hydragyrate is also accepted. So Nestle's reagent in its IUPAC name can be written as potassium tetraiodido mercurate 2 or potassium tetraiodido hydragyrate 2. Okay. Then another important compound is PTNH3 whole 2 Cl2. Okay, PTNH3 whole 2 Cl2 में दो ammonia molecules same side हो सकते हैं, मतलब they may be perpendicular to each other or they may be opposite to each other, resulting in two different isomers. One is a cis isomer, one is a trans isomer. We'll talk about geometrical isomerism in coordination compounds later on. We'll find that PTNH3 whole 2 Cl2, it's an important compound which can exist as well as in cis as well as trans form. It is a cis form which is very important and it is used in chemotherapy for cancer treatment. ठीक है, tumors को kill करने के लिए, ठीक है, it is used in chemotherapy. Cisplatin, it's an important, it has an important medicinal use. Applications of coordination compounds में भी ये point देखेंगे. Then NIDMG whole twice. NIDMG whole twice का structure हमने अलग से किया ही है अभी. It is formed in the test of nickel ions. It is a rose red precipitate. IUPAC name will be bis dimethyl glyoxymeto nickel 2. Then we have FeCO whole 5 pentacarbonyl iron 0. Okay. In the carbonyl compounds, it is very often found that metals are in zero oxidation state. The carbon monoxide CO is a neutral molecule, no charge on CO, no charge overall, so therefore iron oxidation number 0. It is pentacarbonyl iron 0. Okay. So 0 needs to be specified. The oxidation number 0 also needs to be specified. Then we have Mn3CO whole 12. 12 carbonyl group है. We'll write it as dodecacarbonyl. 3 manganese है, trimanganese 0. Dodecacarbonyl trimanganese 0 is the IUPAC name for Mn3CO whole 12. ठीक है. Such complexes, जैसे जो 7th example है जहाँ पे 3 central atom interlinked हैं, such complexes, ठीक है, are also named differently according to a different convention. वो हम आगे पढ़ेंगे. जहाँ पे दो मेटल एटम्स को जोड़ने वाला जो लिगैंड होता है उसको हम ब्रिजिंग लिगैंड बोलते हैं. एंड ब्रिजिंग लिगैंड इज नेम्ड स्लाइटली डिफरेंटली. ये आगे किया है हमने. इससे पहले 8th एग्जांपल पढ़ते हैं. SnCl3 माइनस. जैसे CCl3 माइनस एक एनायन है ना, वैसे SnCl3 माइनस इज आल्सो एन एनायन. ठीक है. SnCl3 माइनस इज कॉल्ड ट्राइक्लोरोस्टेनाइट आयन. तो करस्पॉन्डिंग लिगैंड विल बी रिटन एज ट्राइक्लोरोस्टेनिटो. ठीक है. IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स बिकम्स, ठीक है, सबसे पहले 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो और ट्राइक्लोरिडो, देन ट्राइक्लोरोस्टेनिटो, देन प्लैटिनेट 1, प्लैटिनेट 2 आयन, प्लैटिनम पे +2 चार्ज आएगा. ठीक है. तो ओवरऑल नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोस्टेनिटो प्लैटिनेट 2 आयन. प्लैटिनम पे डेफिनेटली +2 चार्ज है बट पूरा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है. तो इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक विल यूज अ सफिक्स ATE, तो प्लैटिनेट यूज करेंगे. ठीक है, आ रहा है समझ में? एक सेकेंड रुकना.
Next, another important complex is Na2NiEDTA. Okay, cation is sodium. EDTA is a single hexadentate ligand. EDTA 4 minus will consider. EDTA पे अगर 4 माइनस चार्ज लेंगे तो निकल पे +2 चार्ज आएगा. तो आयुपैक नेम विल बी, ठीक है, पहले कटायन लिख लिया हमने सोडियम, फिर एनायन का नाम लिखेंगे. एनायन में पहले लिगैंड लिखेंगे. लिगैंड इज इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, एंड देन निकल इज पार्ट ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, विल राइट इट एज निकलेट 2. ठीक है. एंड नेक्स्ट NiCl2 PPH3 whole twice, will write it as it's a neutral complex. दोनों क्लोरीन पहले लिखेंगे डाइक्लोरो. फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इज अ सब्स्टिट्यूटेड लिगैंड, विल यूज bis triphenyl phosphine nickel 2. PPH3 is written as triphenyl phosphine. It is an important monodentate ligand. Okay. Next example देखो. Next example we have a compound of platinum in which both cation and anion are complex ions. ठीक है. इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है. व्हेन बोथ cation and anion are complex ions, it becomes difficult to find out the oxidation number. ठीक है. इसमें देखो दोनों प्लैटिनम, अगर ये प्लैटिनम x है तो इसका भी चार्ज x लेंगे, तो टोटल चार्ज आ जाएगा x प्लस 0 प्लस x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 2. तो प्लैटिनम पे चार्ज आ जाएगा +2. In the cationic complex also platinum is in +2. In the anionic complex also platinum is in +2. ठीक है. So IUPAC name will be tetraamine platinum 2. In the cationic complex, we'll write it as platinum, whereas in the anionic complex, we'll write it as platinate. Tetrachloroplatinate 2. तो टेट्रामाइन प्लैटिनम 2, टेट्राक्लोरोप्लैटिनेट 2. तो पहले कटायन का नाम लिखेंगे, फिर एनायन का नाम लिखेंगे. ठीक है. विद इन द कटायन विल राइट द लिगैंड्स फर्स्ट एंड देन द सेंट्रल एटम. विद इन द एनायन आल्सो विल राइट द लिगैंड्स फर्स्ट एंड द सेंट्रल एटम. ठीक है.
Then we have CONH3 whole 5 Cl, CONH3 whole 4 CNH3 whole 2 Cl4 whole twice. यहाँ पे देखो ये एक important example है, which is a compound of type AB2 containing one cation and two anions. Containing one cation and two anions, cation with +2 charge and anion with -1 charge. ठीक है, but never we represent the number of times a cation or anion is repeated. We'll simply write the cation and the anion separately. Cation is pentamine chlorocobalt 3, anion is diamine tetrachlorocobaltate 3. ठीक है, will not write how many times a cation or anion is repeated. जैसे next वाला example देखो, cation with +3 charge and anion with -2 charge. The formula will be A2B3. The compound is written as cation 2 times and anion 3 times. A2B3 type compound, but will not write the number of times a cation or anion is repeated in the IUPAC name. IUPAC name is simply hexaamine cobalt 3 and the anion is amine pentachlorocobaltate 3. ठीक है, clear है ये? Next we'll do naming of some polycentric complexes. Polycentric complexes, the complexes containing two or more central atoms. ठीक है, two or more central atoms, ठीक है, are linked by ligands which are known as bridging ligands. Bridging ligands form a link between two different central atoms and their names are prefixed by letter mu. ठीक है, इनके IUPAC names देखो. So this is an example of a dicentric complex having two central atoms. So the two coordination sphere, there are two different coordination spheres. एक इधर एक coordination sphere है, एक और coordination sphere है, and these two are linked by bridging ligands hydroxide and amide. We'll write them separately. We'll write tetraamine cobalt 3 first, then the bridging ligands mu amido mu hydroxido, and then the other coordination sphere tetra aqua cobalt 3 sulfate. ठीक है, if the two coordination spheres are identical, if the coordination spheres on the left and the coordination sphere on the right are identical, जैसे ये दोनों अगर identical हैं, इसको दो बार नहीं लिखेंगे, इसको एक ही बार लिख सकते हैं. So we can write the bridging ligands first. In this case, we have written bridging ligands first, mu amido mu hydroxido, then bis. Bis क्यों? क्योंकि ये दो coordination sphere दो बार repeat हो रहा है. bis के अंदर bracket में क्या लिखेंगे? tetra aqua cobalt 3. ठीक है, ये tetra aqua cobalt 3 दो बार repeat हो रहा है, इसीलिए हमने इसको, ठीक है, bis करके लिखा है. हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो राइट द टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स सेपरेटली. फिर ऊपर वाले कंपाउंड की तरह इसका IUPAC नेम लिखेंगे. इन दैट केस विल राइट इट एज, जैसा ऊपर लिखा था वैसे ही, बस दो बार टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 लिखना पड़ेगा. टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3, फिर अपन इसके ब्रिजिंग लिगेंड्स म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सिडो, एंड देन अगेन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3, ऐसे भी लिख सकते हैं. The better way will be whenever the two coordination spheres are same, exactly repeated, the better way will be which I have written below, in which we'll use bis and we'll write the two coordination spheres together, ठीक है, because they are the same. तो bis tetra aqua cobalt 3 लिखेंगे. ठीक है, क्लियर है? ये आ रहा है समझ में? ये bis वाला समझा, म्यू वाला, म्यू हाइड्रोक्सिडो म्यू अमीडो ब्रिजिंग लिगेंड्स कैसे नेम करना है. Next we'll do complexes in which ligands coordinate their pi electrons. Okay, these are also some important complexes in which ligands coordinate their pi electrons. Examples of such ligands are ethylene, benzene, cyclopentadiene, cyclopentadienyl anion, butadiene, etc., in which the ligands are coordinating their pi electrons with the vacant orbitals of the central atom. They do not have any lone pair. In fact, they coordinate their pi electrons, electron pair of the pi bond to the vacant orbital of the central atom. जैसे एग्जांपल देखो, अगर कोई सेंट्रल एटम मेटल M है, सेंट्रल मेटल M, इथिलीन कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? इथिलीन के जो दो पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स गेट कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल एटम. ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि these two pi electrons are actually present on both the carbon atoms. These electrons are shared by the two carbon atoms. Effectively, both the carbon atoms get bonded to the metal. तो metal से दोनों carbon atom effectively bonded हो जाते हैं. ठीक है, तो the number of atoms
that are effectively bonded to the metal atom in pi donating ligands is called as hapticity. Okay, hapticity is actually the number of atoms on which the pi electrons are distributed. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है hapticity का term define किया है. It is the number of carbon atoms on which the pi electrons are delocalized. It is the number of carbon atoms effectively bonded to the central atom. Talking about butadiene, butadiene has 4 pi electrons. ब्यूटाडाइन हैज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. इफेक्टिवली 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन सकते हैं मेटल एटम के साथ. ठीक है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इट कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद अ सिंगल सेंट्रल एटम. इफेक्टिवली ऑल द 4 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू मेटल. क्योंकि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, these 4 electrons are delocalized on all the 4 carbon atoms. So these 4 electrons are delocalized on all the 4 carbon atoms. As a result, all the 4 carbon atoms are effectively bonded to the metal. So for pi donating ligands, we define a term called as hapticity. Hapticity is the number of atoms effectively bonded to the central atom. And hapticity must be specified in the formulae of the compound. Okay, hapticity must be specified in the formulae of the compound. So ethylene is often written as eta square C2H4 because ethylene में दो carbon atom metal से bonded होगा. Butadiene में will write eta 4 C4H6 because all the 4 carbon atoms will be bonded to the metal. So hapticity is specified, ठीक है, over prefix eta. eta लिखेंगे, eta के ऊपर, ठीक है, उसका hapticity specify करेंगे. तो benzene is written as eta 6 C6H6. ठीक है, cyclopentadienyl anion is written as eta 5 C5H5 and butadiene is written as eta 4 C4H6 etc. तो eta prefix यूज करते हैं पाई डोनेटिंग लिगैंड्स के साथ, और ईटा के ऊपर हम हैप्टिसिटी स्पेसिफाई करेंगे कि इफेक्टिवली कितने कार्बन एटम सेंट्रल एटम से बॉन्डेड है. एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज जीसिस सॉल्ट. ठीक, कुछ एग्जांपल्स करेंगे पाई कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस के लिए जहां पे लिगैंड्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेटेड हैं. एक एग्जांपल है जीसिस सॉल्ट. जीसिस सॉल्ट में ध्यान से देखना, इथिलीन का जो 2 पाई, इथिलीन में डबल बॉन्ड है, उसमें से पाई बॉन्ड के जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वो प्लैटिनम से बॉन्डेड है. इफेक्टिवली both the carbon atoms of ethylene are bonded to the metal. ठीक है, hapticity of ethylene is 2, so we write it as eta square C2H4. Hapticity is specified only in the formula of the complex, not in the IUPAC name of the complex. IUPAC name is simply potassium trichloroethylene platinate 2. ठीक है, hapticity केवल हम IUPAC नेम में स्पेसिफाई नहीं करेंगे, केवल फॉर्मूले में स्पेसिफाई करेंगे. 2 और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं पाई कोऑर्डिनेटिंग लिगैंड्स के. एक है फेरोसिन. इसमें क्या है, 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स हैं. 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स के बीच में एक Fe2+ सैंडविच्ड होता है. इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सैंडविच्ड कॉम्प्लेक्स वेयर Fe2+ इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 एरोमेटिक रिंग्स. ठीक है, बोथ रिंग्स इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट 6 इलेक्ट्रॉन्स. ऊपर वाले रिंग से 6 इलेक्ट्रॉन्स और नीचे वाले रिंग से 6 इलेक्ट्रॉन. दोनों रिंग्स अपने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स में कोऑर्डिनेट कर रहा है. तो इफेक्टिवली टोटल 12 electrons are coordinated to the central atom. It is a sandwich complex, called as a sandwich complex because iron ion is sandwiched between 2 aromatic rings. ठीक है, IUPAC नेम लिखेंगे. IUPAC नेम में hapticity स्पेसिफाई नहीं करते. IUPAC नेम इज bis cyclopentadienyl iron 2, कॉमन नेम इज फेरोसिन. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, C5H5- can also be a normal ligand, can also be a normal sigma donating ligand where the lone pair of the negative charge is coordinated to the central atom. In that case, along with the name, we do not use the prefix eta. अगर prefix eta use नहीं कर रहे हैं, that means that is a normal ligand. Prefix eta use कर रहे हैं, that means it is a pi donating ligand. तो ये वाला एग्जांपल देखो, जहाँ पे आयरन से 2 C5H5 बॉन्डेड है, तो 2 C5H5 in this case will act as monodentate ligand. तो 2 monodentate C5H5, 4 monodentate cyanide, तो टोटल ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा. ठीक है, अगर C5H5 के साथ ईटा यूज नहीं किया हमने, दैट मींस इट इज अ सिग्मा डोनेटिंग लिगैंड. अगर ईटा यूज किया, दैट मींस इट इज अ पाई डोनेटिंग लिगैंड. तो पाई डोनेटिंग लिगैंड के साथ हम हमेशा एक प्रीफिक्स ईटा यूज करते हैं. दिस प्रीफिक्स ईटा इज ऑलवेज यूज्ड विद पाई डोनेटिंग लिगैंड्स with hapticity specified above the eta symbol. Above the symbol of eta will specify the hapticity of the ligand. ठीक है, क्लियर है ये?
आ रहा है समझ में? IUPAC name will be bis cyclopentadienyl iron 2. एक मिनट रुकना. ठीक है, एक और एग्जांपल है बिस बेंजीन क्रोमियम और डाई बेंजीन क्रोमियम. ठीक है, बिस एंड डाई दोनों यूज कर सकते हैं बेंजीन के साथ. बेंजीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो डाई इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ कोऑर्डिनेट हो रहे हैं क्रोमियम के साथ. बिस बेंजीन भी यूज होता है. ठीक है, तो दोनों एक्सेप्टेड है, बिस बेंजीन क्रोमियम और डाई बेंजीन क्रोमियम 0. दिस इज ऑल्सो a sandwiched complex where chromium is bonded to two benzene rings where all the 6 carbon atoms are effectively bonded to chromium. Therefore, in the formula we write it as eta 6 C6H6. ठीक है, क्लियर है ये? तो जैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स का आईयूपैक नेम लिखना आता है. सिमिलरली कॉम्प्लेक्स का नेम गिवन हो सकता है और उसका फॉर्मूला आइडेंटिफाई करने को भी आ सकता है. ठीक है, तो ये रिवर्स करना बहुत आसान है. अगर मान लो नेम गिवन है और फॉर्मूला लिखना है, तो नॉर्मली हम पहले कैटायन और एनायन सेपरेटली आइडेंटिफाई करेंगे. आयरन 3 इज द कैटायन, मतलब Fe3 प्लस आयन प्रेजेंट है. फिर हेक्सासाइनोफेरेट 3, हेक्सासाइनो मतलब FeCN6. अभी साइनाइड पे चार्ज होता है -1, 6 साइनाइड पे टोटल चार्ज हो गया -6. ठीक है, एक सेकंड रुकना. हम्म, हाँ, 6 साइनाइड पे टोटल चार्ज हो गया -6. फेरेट 3 मतलब इस पे चार्ज दिया हुआ +3, तो +3 और -6 टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दी एनायन विल बी -3. तो इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज -3 आ गया. ठीक है, अब कैटायन पे -3 चार्ज, एनायन पे +3 चार्ज, कैटायन पे +3 चार्ज, एनायन पे -3 चार्ज. तो फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी सिंपली, the formula of the compound will be simply, ठीक है, एक कैटायन का चार्ज एक एनायन से बैलेंस्ड होगा, तो फॉर्मूला इज सिंपली FeFeCN6. ठीक है, तो पहले कैटायन और एनायन लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला लिखेंगे. नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो. अगेन आयरन 3, दिस इज Fe3 प्लस, दिस इज हेक्सासाइनोफेरेट 2. हेक्सासाइनोफेरेट 2, इसमें एनायन पे चार्ज डिटरमाइन करेंगे. 6 साइनाइड है तो -6, फेरेट 2 मतलब +2, +2 एंड -6, एनायन पे चार्ज आ गया -4. ठीक है, तो कैटायन पे चार्ज +3, एनायन पे चार्ज -4. अभी फॉर्मूला लिखेंगे. तो नॉर्मली हम कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये वैलेंसीज इंटरचेंज करके हम फॉर्मूला लिखते हैं.
the formula will become Fe4 FeCN6 whole thrice. आ रहा है समझ में? This is how we have written the formula for the remaining compounds also. यहाँ पे मैंने बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो होमवर्क ये कर सकते हो तुम लोग. दिस इज द होमवर्क. HA1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और HA सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 to 50 फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का A to H. ठीक है, एक बार कुछ क्वेश्चंस हम अभी अटेम्प्ट कर लेते हैं. आज मैं आगे नहीं कंटिन्यू करूंगा. ठीक है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, मैंने 3 PDF शेयर किए और PDF मैं शेयर कर दूंगा, तो नेक्स्ट 2 PDF भी तुम लोग कॉपी कर लेना. ठीक है. ये क्वेश्चंस किए थे हमने. अभी कुछ और क्वेश्चंस देखो इसमें. कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लास में करा दिए, जैसे 28 देखो क्लास नोट्स में कराया मैंने, फिर 40 भी क्लास नोट्स में कराया मैंने. ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो. रुको एक सेकेंड. राइट दी IUPAC नेम ऑफ क्वेश्चन नंबर 42. इसमें ब्रिजिंग लिगैंड इन्वॉल्व है. क्वेश्चन नंबर 42 ट्राई करो. अभी सारे PDFs कॉपी करने की जरूरत नहीं है. 2 PDF एटलीस्ट कॉपी करो. 3 PDF मैंने पहले शेयर किया था,
2 PDF और कॉपी कर लो अभी। हो गया, ये वाला क्वेश्चन कर लिया। पेंटा अमाइन, पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगैंड, ध्यान से देखना। प्रिंट आउट तुम लोग सारे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉपी कर रहे हो तो एक साथ सारा कॉपी करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो 2 PDF एक साथ कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर अमाइन पे 4 0, NH2 पे -1, अमोनिया पे 0, H2 पे 0, 5 क्लोरीन है तो -5, टोटल 2 कोबाल्ट है, x x, तो 2x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो कोबाल्ट पे चार्ज 3 आ गया। दिस विल बी पेंटा अमाइन कोबाल्ट 3, देन म्यू अमिडो, देन टेट्रा अमाइन एक्वा कोबाल्ट 3, टेट्रा अमाइन एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लियर है ये? गुड गुड, ठीक है, गुड ईशान, ठीक है ना। तो कंप्लीट दी होमवर्क। ठीक है, HA1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10, होमवर्क इज HA1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10, और HA सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। HA सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। PDF कॉपी करके आना, विल कंटिन्यू विथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नेक्स्ट। बाय एंड टेक केयर।